एक्सटेंडेड टॉक्स होगा मैम। अच्छा, मैम वही एक्सटेंडेड टॉक्स है। मैम सबको जी, ईमेल आ मैम। गई एक्सटेंडेड टॉक्स की। अच्छा चलो ठीक है, कम से कम एक चीज कंक्लूड तो हुई ना, तो कम से कम हमारा पैटर्न फिर उसी साइड पे होगा। तो आज किसका केस है? मैम मेरा है। जी जी बताइए। जी मैडम, एक सेकंड मैडम। एक्चुअली मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? यार आई थिंक मेरे मैम सिग्नल आपकी आवाज क्लियर है। मेरे अच्छा सिग्नल ठीक से है, प्रॉब्लम होगी तो एक सेकंड। ठीक है ठीक है। जी बेटा शुरू करें। 32 years old। मैडम आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। ओके, अब मुझे क्लियर हो गई है। ओके, 32 years old, graduate 2 para 1 plus 0, previous one हाउ cesarean मेनी section। इयर्स ओल्ड? आपने क्या क्या एज बताइए? 32 years। 32 इयर्स, 32, ओके। yeah। 32 years old, graduate 2 para 1 plus 0, previous one cesarean section, last born 2 years back, has presented with complaints of 31-week gestation with previous one and leaking since 1 day, raised and also raised sugar levels, having fasting sugar levels of 105 milligram per deciliter and postprandial is 200 milligram per deciliter. It was the leaking was not associated with any labor pains, and there's a history of vaginal discharge 2 weeks back, and she did not take any treatment for that. On per abdomen examination, on height of fundus is 30 centimeters, lie longitudinal, presenting part is calf, and FHs are positive. Lycus seems to be decreased, and weight is seems to be 2.2 kg. On first second findings, where leaking was positive. Baki आपको vital issue was stable. There was no other specific findings on that. मैंने सिर्फ positive findings आपको बताई हैं, और जो है lab parameters में मैं आपको भी से बता दूं investigations. CRP was less than 6 was the normal limit, and total leukocyte count was 12,000, and HB was normal. मतलब everything was normal else. Okay. And there's no OGTT. आपने अभी तक CRP और TLC मुझे बताया है। CRP is less than 6. ठीक है, वो आपने मुझे बता दिया, ठीक है। जी, जी। और इसके अलावा और कोई TLC 12,000 और पॉजिटिव फाइंडिंग कोई नहीं है। बाकी में बस अल्ट्रासाउंड अवेलेबल था क्योंकि बस ER में पेशेंट आई थी। तो अभी जो एक रीसेंट स्कैन हुआ था तो उसके अंदर 30 वीक्स का हुआ था, एंड उसके अंदर सारी पैरामीटर जो थी वो सब 30 वीक्स पे रिस्पॉन्ड कर रही थी। प्लेसेंटा वाज पोस्टीरियर और AFI वाज 8 एंड fetal weight was 2.3 kg। ये अभी करंट अल्ट्रासाउंड है? जी जी, ये करंट अल्ट्रासाउंड है, पुरानी कोई बस स्कैन अवेलेबल नहीं था। ठीक है। तो मैडम नाउ हाउ शुड आई स्टार्ट? मैं हिस्ट्री पॉइंट्स बताऊं आपको कि क्या मैं हिस्ट्री में बेसिकली ये तो आपका सिनेरियो हो गया ना, जो आपका एक हो सकता है क्वेश्चन स्टेम हो सकता है। अब इसमें बाकी इंफॉर्मेशन आपको क्या चाहिए? बिकॉज she is at 31 weeks of pregnancy. Yes, 31. और इस कंप्लेन के साथ उसने प्रेजेंट किया। Okay. What additional information you want? Sir, I would like to know regarding the indication of the cesarean section and outcome of the baby, whether it is alive, and any previous history of leaking. I'm starting with the past history initially. Any previous history of leaking in the previous pregnancy and gestation diabetes previously, any treatment taken, and any 6 weeks postpartum sugars has been performed, any other postpartum complication, any family history of diabetes. Now in the current pregnancy, details regarding the leaking, details of the gush of fluid, that is color and smell, is it associated with abdominal pain and bleeding, history of decreased fetal movement, any investigation and treatment done till yet. Regarding GDM, any OGTT has been performed, and how was she diagnosed regarding the sugars, raised sugars level? Any history of increased appetite and dryness of mouth and increased frequency of urine?
And is she aware about the regarding the lifestyle modification for the sugars? Any treatment, oral hypoglycemic treatment taken as yet? And according to her, the perception of the baby is according to the gestation. Anomaly scan has been done, and how she monitors her sugar levels. And bus enough regarding the history. ठीक है, बस ये पास्ट और हिस्ट्री से रिलेटेड आपने कुछ चीजें इसमें इंक्वायर की और इसमें किसी इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत नहीं है? No, madam. I have no other. Any drug allergies? ठीक है. ड्रग एलर्जीज या और मुझे तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं लगी कि मैं सर्जिकल हिस्ट्री पूछूं, बिकॉज मैंने सिजेरियन के बारे में पूछ लिया था ना, इंडिकेशन क्या है इसकी. इंडिकेशन के अलावा भी उसमें कोई प्रीवियस कॉम्प्लिकेशन, हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनीथिंग, मतलब वो सारा कुछ एनी पोस्टपार्टम, एनी एंटीपार्टम, ऐसे बोल दो, एनी एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस एंड ड्रग एलर्जीज. ओके, अब इसमें ये जो आपने मुझे बताए हैं पॉइंट्स, इसमें ये बाकी ऑडियंस से भी हम थोड़ा सा इसमें ओपिनियन ले लेते हैं कि उनके ख्याल में कुछ इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है या नहीं है. ऑनसेट और ड्यूरेशन नहीं है यहाँ पे प्री प्रॉम का, और इसके साथ प्रोवोक्ड है या प्रोवोक्ड है जी, प्रोवोक्ड है क्या प्रोवोक्ड है, ट्रॉमा की हिस्ट्री तो नहीं, और ब्लीडिंग की हिस्ट्री या फीटल मूवमेंट की हिस्ट्री. ठीक है, उसमें एडिशनल देखो, जब पेशेंट, अब हमें ये नहीं पता ये जेस्टेशनल डायबिटीज है या क्या है, ये सारी चीजें हमें नहीं पता, तो उससे भी रिलेटेड के इससे पहले यूटीआई और विजाइनल डिस्चार्ज का तो इन्होंने बता दिया, तो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता कि डिस्चार्ज किस टाइप का था. शी हैज आस्क्ड अबाउट द डिटेल्स ऑफ करंट जो लीकिंग हुई है उसके बारे में, बट व्हाट अबाउट द डिस्चार्ज प्रीवियसली. फिर हमें उसकी टाइप ऑफ डायबिटीज नहीं पता, जीडीएम है या वो है, वो उसमें प्रीवियस हिस्ट्री से रिलेटेड तो उन्होंने पूछ लिया, या कुछ इंफॉर्मेशन हमें वहां से भी पता चल सकती है, जैसे इन्होंने पोस्टपार्टम एवेल्युएशन ऑफ शुगर प्रोफाइल ये बताया. लेकिन व्हाट अबाउट द प्री कंसेप्शन टाइम पीरियड, अगर फर्ज किया कि पोस्टपार्टम नॉर्मल भी था, तो इन 2 सालों में उसको कोई साइन सिम्टम्स रहे या ना रहे, क्योंकि ये हमने इसको बेसिकली वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप 2 एंड बिटवीन जीडीएम, तो ये हमने 2 चीजों को डिफरेंशिएट करना है. और फिर जो विजाइनल डिस्चार्ज इसका था, उसकी कोई ट्रीटमेंट ली या ना ली, क्योंकि इट मे बी अ प्रीसीडिंग इवेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, जो प्रॉमिस का जो कंफर्म्ड हो चुका हुआ है वो, तो ये थोड़ा सा डिटेल में पूछने की जरूरत है ना. एंड शी हैज आस्क्ड अबाउट द ओजीटीटी. क्या ये जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं ये रैंडमली चेक हुए फास्टिंग एंड पोस्ट प्रेंडियल, या हमने ग्लूकोज लोड दे के चेक किया, सिर्फ इस हद तक हमें पूछना है. और 31 वीक्स पे तो ये ब्लड शुगर लेवल्स हैं. ओजीटीटी इससे पहले कब हुआ या ना हुआ, बेसिकली हमने ओजीटीटी का अभी जिक्र नहीं करना, सिवाय इसके कि ये जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं ये रैंडमली चेक हुए या ओजीटीटी के नतीजे में, क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि ये ब्लड शुगर लेवल्स हैं और अब मैं ओजीटीटी करवाऊंगी तो उसकी जस्टिफिकेशन नहीं बनती. सो यू हैव टू स्पेसिफाई ये ओजीटीटी जो है वो उसके पूछने का मतलब क्या है. ये सही चीज भी हो सकती है और गलत चीज भी हो सकती है. इनिशियली इसका चूंकि फैमिली हिस्ट्री इसकी पॉजिटिव है या नहीं है वो भी हमें पता होना चाहिए. और इसके अलावा फिर ओजीटीटी की जस्टिफिकेशन, रिस्क फैक्टर, तो वैसे ही हमारी सारी पॉपुलेशन या रिस्क होती है, इसलिए यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ही समझी जाती है. खास तौर पे जो पेशेंट का जो प्रीवियसली है रिकॉर्ड, उसके मुताबिक भी हमें इसके थोड़े से हमें करने पड़ेंगे लाइन आउट पैरामीटर्स के क्या रिस्क फैक्टर है इसमें. लेकिन ये हमें थोड़ा सा मजीद स्पेसिफाई करना पड़ेगा इसको. मैडम, तो ये अगर वो बताते हैं कि देयर इज कि 6 वीक्स पोस्टपार्टम पे जो है इसकी शुगर्स रेज्ड आई थी, तो फिर मैं पूछूंगी कि फिर मैं आगे जस्टिफाई करूंगी ना कि हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ कि ओजीटीटी को आपने अभी जो है, क्योंकि इस ब्लड शुगर लेवल के बाद आप ओजीटीटी को जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इससे पहले वाला जस्टिफाई कर सकते हो. तो इसलिए थोड़ा सा इसका टाइम स्पेसिफाई कर दो, अदरवाइज दिस थिंग इज ओके. ओजीटीटी का पूछना ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको टाइम और स्पेसिफिकेशन इसकी जरा बतानी पड़ेगी. अब इसमें पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड इसमें क्या चीजें हैं वो डेफिनेटली
यू विल बी गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, लेकिन पेशेंट से रिलेटेड क्या आपने ये सवाल उससे पूछे और उसका जवाब क्या था, क्योंकि जो पेशेंट ने आपको जवाब बताए वो ही इसकी की में भी होंगे। तो इसलिए जो है वो, क्योंकि जो भी पेशेंट का एक टिपिकल सिनेरियो होता है उसके मुताबिक उसकी की भी बनती है। और यूजुअली ये जो एक्सटेंडेड टॉक्स में क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर क्लिनिकल बेस्ड, ये एक्चुअल रियल जो फैक्चुअल सिनेरियोज होते हैं उन पे ये बेस होते हैं, यानी जो एक्चुअली जो वार्ड में पेशेंट आए या जिनको मैनेज किया गया या जिनका जो ये किताबों से उस तरह से उठाए नहीं जाते, ज्यादातर, रेयरली हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर ये एक्चुअल केस सिनेरियोज पे बेस्ड होते हैं। तो इसलिए जो आपने आपके अपने पेशेंट ने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी वो समझे उसकी की है, ठीक है। तो अब इसके जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने दी है इसके बारे में अगर कोई पॉजिटिव चीजें हैं तो वो आप हमें बता दीजिए। इस पेशेंट के लिहाज से जी जी, इसी पेशेंट की हम मैडम उसका 6 वीक्स उसने बोला कि जो 6 वीक पोस्टमार्टम थी दैट वाज नॉर्मल, उससे कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो दैट इज व्हाई आई डिड नॉट स्पेसिफाई ऑन द established diabetes all problems, like उसके discharge के बारे में मैंने पूछा कि any preconceptional counseling, any treatment she was taking before, any switch over of the drugs, so वो मैंने exclude कर दिया था। और was she, even if it was a case of GDM in the last pregnancy, even then was she counseled and educated about the lifestyle modification or not? क्योंकि GDM चाहे वो बाद में उसका ठीक भी आया पोस्टमार्टम ब्लड शुगर प्रोफाइल, फिर भी शी इज एट रिस्क टू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें एजुकेट करना पड़ता है अबाउट द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। तो क्या वो उसका हुआ या ना हुआ, तो ये सारी चीजें, बिकॉज इन बिटवीन दिस 2 years जो इसका इंटरवल है उसका वो थोड़ा सा, चाहे वो एक आप सिर्फ इतना सा ही बता दें कि what about the investigation and follow up and the lifestyle modification in between these 2 years? She did not follow up after the 6 weeks postpartum. Okay. Then if she had क्योंकि GDM का तो आपने पूछ लिया, लेकिन अगर ये उसकी हिस्ट्री है पुराने GDM की, तो इसमें भी प्रोबेबली अब GDM 50% में तो टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमें इसके बारे में सिनेरियो कुछ नहीं पता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू यू शी प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट 31 वीक्स। अगर हम इसमें HbA1c जो आपने प्रोबेबली नहीं करवाया इसका, तो HbA1c से हमें शायद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए, अदरवाइज हमें नहीं पता कि ये GDM है या टाइप 2 डायबिटीज है। अलबत्ता सिर्फ एक चीज हमें बता सकती है, ऑन द करंट ब्लड शुगर लेवल प्रोफाइल कि अगर इसका फास्टिंग 105 है तो प्रोबेबली ये शायद टाइप 2 डायबिटीज नहीं है, ये GDM है। क्योंकि फास्टिंग अगर ये 126 से ऊपर हो तो इसका ये मतलब है कि ये प्रोबेबली टाइप 2 डायबिटीज है। तो ये भी एक हमारा एक क्रूड एस्टिमेशन होती है। तो चूंकि इसका फास्टिंग 105 है, सो प्रोबेबली हम इसमें कंफर्म नहीं है कि ये केस GDM का हो सकता है। फर्ज किया इसका HbA1c भी अगर रेस्ड आ भी जाता है, तो रेस्ट तो हमें फिर भी ये नहीं बताएगा कि ये GDM है या टाइप 2 डायबिटीज है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा एज्यूम करनी पड़ती हैं ऐसे पेशेंट में चीजें। नाउ बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स जो आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ लिए, जो बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग की है, तो उसके बाद अब आपका प्लान ऑफ मैनेजमेंट इसमें क्या है? 31 वीक्स डायबिटिक्स, प्रीवियस सेक्शन एंड नाउ प्रोम विद कंफर्म्ड प्रोम। So madam, should I ask? इसका जो फंडल हाइट बेटा आपने बताई है वो है 32 वीक्स, 32 सेंटीमीटर। Sorry, 30 madam, 30. अच्छा 30 है, सॉरी 30 वीक्स है, और इसमें लाइकर सीम्स टू बी रिड्यूस्ड ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ओके, so madam, should I proceed with the investigations more? What investigation I would like to carry out in this patient and then tell the management? एग्जाम में ऐसी होगा ना इन्वेस्टिगेशंस? हाँ, मतलब ये है कि देखो, जब आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग की बात की है ना, तो इन्वेस्टिगेशन का आप वहीं पूछोगे। प्लान ऑफ मैनेजमेंट होता ही तब है जब आपके पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन सारी जमा हो जाती है। वो इंफॉर्मेशन जब आपके पास होंगी तो उसके ऊपर आपने अपना प्लान ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करना है। लाइक इन दिस पेशेंट, बाकी ब्लड शुगर लेवल प्रोफाइल क्या है, ये जो हुए ये कब के हुए हैं,
इस पे जो है वो ऑलरेडी किस ट्रीटमेंट पे चल रही है या नहीं चल रही, दिस यू मस्ट बी नोइंग बाय टेकिंग द हिस्ट्री, या जिस पेशेंट का भी आपने सिनेरियो पिक किया उसके बारे में आपने ये पूछा, चीजें तो पूछी होंगी, तो उसके ऊपर आपने बेस करनी है अपना प्लान ऑफ मैनेजमेंट। Yes, madam. So regarding the before starting with my management, I would like to have certain specific investigations for GDM. First, urine DR to see the pus cells, glucose, and any protein. Any OG oral glucose tolerance test performed. 24 hours sugar monitoring, and HbA1c, and ultrasound dating scan if available. Fetal anomaly scan, and any recent scan if available. Regarding the PPROM, speculum examination has already been given. I would like to know the detailed report of the total leukocyte count, CRP. वो तो आपने बता दिया हमें, CRP का भी बता दिया। जी जी। And HVS, and ultrasound. I've already been asked for the amount of Likert. ठीक है, वो भी आपने बता दिया। ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको पहले से पता है। जी जी। Except for HbA1c and HbS report, बाकी 24 आवर ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटरिंग जो है वो अगर आपने पेशेंट फर्ज किया पेशेंट की नहीं भी अवेलेबल, तो बाद दफा वो बना दी जाती हैं। एक मतलब सिंपल सा एक डिस्प्ले होता है कि 24 आवर्स में इसका ब्लड शुगर लेवल ये है, जस्ट फॉर द डिस्कशन एंड टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें HbS और HbA1c की रिपोर्ट आपको अवेलेबल नहीं है, इज इट सो? जी जी मैडम, वो नहीं है। ठीक है, तो HbA1c सपोज इट्स 6.5 और HbS की रिपोर्ट जो है दैट इज स्टिल अवेटेड। HbS की रिपोर्ट आने में टाइम तो लगता है ना, एंड द पेशेंट हैज प्रेजेंटेड टू यू at 31 weeks with history of PROM for 1 day. What would be your time of action now? Okay. First thing is counseling regarding the diagnosis to her and the family. That is regarding the PPROM and gestation diabetes. Counsel regarding the fetal-maternal risk if left untreated. Involvement of a multidisciplinary team. I have two issues here, that is PROM and gestation diabetes. So first, involve a multidisciplinary team. That is diabetologist and a dietitian. The patient would be counseled regarding the need of admission for at least 24 hours for observation. DEXA cover will be started, and start the antibiotic erythromycin 250 milligram QID for 10 days. Apply pad, blood pressure monitoring, and TPR of the patient. Now I'm going to the fetal part. Fetal kick count chart would be given, and twice weekly CRP and ultrasound will be done for the amount of Likert. This is for the PROM. And for 24 hours, I will see whether the leaking has been settled or not, and we have to observe for the color of and the Likert, and also ask regarding the fever, abdominal pain, and if the color of the discharge discharge has been changing or not, so that we can take any intervention. Now regarding the diabetes, GDM, counsel regarding the lifestyle modification. That is, you should walk at least for 15 minutes after each major meal. About the diabetic diet, that is 6 times meal, 2 major and 3 major meals and 2 snacks, according to the caloric intake and the BMI of patient. Then I will start with my, and also perform, as my patient is admitted, I will perform 6 times sugar monitoring of the patient. Okay. Acha, ठीक है. So these are the counseling component. Basically, you are explaining to her the plan of management, because you have told her that what are the current problems, and then how to tackle with those problems. What else you need to educate her? इसमें और उसको जो counseling components हैं, ये this all is the plan of management. Basically, ये plan of management है जो आपने उसके साथ discuss किया. तो ये तो काउंसलिंग का सिर्फ एक कंपोनेंट है. You brief the patient about the existing problems, and then you tell her about the proposed plan of management. This is the second component. What are the additional components of management in this case? Madam, मुझे समझ नहीं आ रहा कि like what we have to say कि we have to tell her more counseling or regarding the management regarding the. जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो आप सबसे पहले मरीज को बताती हैं कि ये आपके अंदर प्रॉब्लम है.
इन प्रॉब्लम्स के ये नतीजे हो सकते हैं, यानी जो बेसिकली कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड है कि आप पेशेंट को ये यू टेक द पेशेंट ऑन बोर्ड एंड हर फैमिली कि ये जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, क्या पेशेंट डेफिनेटली वो पूछता है सवाल कि ये जो इसका जो वाटर बैग रप्चर हो गया इस अर्ली स्टेज पे, इसका बच्चे पे कोई बुरा इफेक्ट होगा या नहीं होगा, एंड यू हैव टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चन। अब समझ गए। तो Yes, madam. ये जो चीज है कॉम्प्लिकेशन, अब इसमें देखो एक तो डायबिटीज है, डायबिटीज इटसेल्फ हैज इट्स ओन इम्पैक्ट्स, but the additional complication is rupture of membrane in the presence of diabetic pregnancy. So how you would counsel the patient about that, because you have to inform her about the complications, जो उसकी possible complications हैं वो उसके बारे में. So I will counsel her. And after that explaining to her the possible complications, and after that you will tell her, because she definitely can question you, that if these are the complications then how you are going to manage this case. अगर फर्ज किया ये एक एक्सक्लूसिव काउंसलिंग का सेशन हो तो उसमें ये सारी आंसर क्वेश्चन चल रहे होते हैं, but if this is just one of the components of the management of this scenario as a whole, as a single extended talks, तो आपने सिर्फ इसमें 1-2 पॉइंट बताने हैं कि I will tell the patient about the possible complications of PROM in this diabetic patient at 31 weeks. Because these patients are at an additional risk of infections, like urinary tract infections, like vaginal infections. And sometimes this becomes the cause for PROM in these cases. And if there are pre-existent vaginal infection, then definitely risk of chorioamnionitis is increased many folds. और जब रिस्क ऑफ कोरियामनियाइटिस हो जाता है तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, उसमें आपको बाज दफा आइट्रोजेनिक प्रीमेच्योरिटी वाली चीजें अर्ली आपको डिलीवर करना पड़ता है. ये सारी चीजें हैं जो आपने पेशेंट को बतानी है. और So like I'll counsel regarding the risk of मैनेजमेंट, क्योंकि पेशेंट के जहन में ये बहुत बड़ा मीथ होता है कि ये मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो नाउ द बेबी इज इन डेंजर, जो टू सम एक्सटेंट इज अ रियल फैक्ट. लेकिन उस डेंजर, उसकी एंजाइटी को रिलीव कैसे करना है, आप उसको फैक्ट्स बताएंगे कि टू रिड्यूस दिस डेंजर, as being diabetic she is at additional risk of getting infection in terms of chorioamnionitis, but still we are trying to control it by giving antibiotics, and preferably those antibiotics should be directed by the HBS report, but as it is available after few days. So initially you will start with the erythromycin or any other alternative, and then you can alter it after the HBS report is available. ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपने बतानी है. ये वो सारा प्लान ऑफ मैनेजमेंट है जो हो सकता है डायरेक्ट आप एग्जामिनर को ही बता रहे हो. ठीक है, तो मतलब उसको एडिशन मैंने शुरू में बोल दिया वो फिटो कॉम्प्लिकेशन रिस्क, तो जब वो एग्जामिनर पूछेगा तो मैं उससे यही बोलूंगी कि देयर इज एडिशनल रिस्क ऑफ यूटीआई. हाँ जी, मैं मैनेज एक तो आपने बता दिया प्रॉब्लम क्या है, फिर उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, फिर इसमें हमारा प्लान ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा. और प्लान ऑफ मैनेजमेंट हमारा कंजर्वेटिव है टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी under cover of antibiotics and under cover of regular fetal surveillance, and in as she is presumed to have an early delivery due to presence of this PROM, so you will give DEXA cover, which can further compromise the control of diabetics, and in addition to that you would start some hypoglycemic therapy, क्योंकि जब तक डायबिटीज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है रिस्क ऑफ कोरियामनियाइटिस इज ऑलवेज देयर, बल्कि बढ़ जाता है. तो इसलिए मैं बोलूंगी हाँ जी, ये आपने ये जस्टिफिकेशन नहीं देनी. ये बेसिकली आपने बताना है कि ये डायबिटीज है, डायबिटीज में रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए तो इन्फेक्शन का रिस्क बच्चे को भी ज्यादा हो सकता है हमें जल्दी डिलीवर करना पड़े, उसके लिए डेक्सा कवर देना जरूरी है. और इसके साथ साथ हमारा डायबिटीज का कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी प्रॉम रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को जरा मिनिमाइज कर देगा आफ्टर एडिक्वेट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज. एंड इन एडिशन टू दैट डायबिटीज इटसेल्फ हैज इट्स ओन fetal impacts. So madam, we will say that the patient will be kept on the conservative management and the इतना सा भी काफी है. और वो ये कि इन्फेक्शन को चेक करने के लिए हम रेगुलरली कुछ लैब टेस्ट करवाएंगे और हम अल्ट्रासाउंड करवाते जाएंगे.
And as long as there is no sign symptoms of Korean matter, हमारा objective ये है कि हम इस pregnancy को prolong करें, और ठीक है, उसको fetal ये जो risk आपने बताना है। अब ये जो आपने मुझे बताया है ना, ये है वो वाला प्लान ऑफ मैनेजमेंट जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज हर, ठीक है। तो वो जो उस सवाल का जवाब है कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज हर, उसके ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आपने डायबिटीज की मैनेजमेंट भी बतानी है, जिसमें आपने प्रॉम की मैनेजमेंट भी बतानी है, एंड फाइनली यू हैव टू डिस्कस कि इसमें जो इसका मोड ऑफ डिलीवरी या कब कैसे डिलीवर करना है वो भी। अब इसमें कोई भी एडिशनल कॉम्प्लिकेशन डाली जा सकती है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन। तो इसलिए जो है इसमें कोई भी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो सकती है, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन में कोई कोरिया अमनियोटाइटिस के साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, उस वक्त आप क्या करोगे। तो और इसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के बाद कभी कभी रेयरली ऐसा भी सिनेरियो होता है कि उसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाली भी चीज डिस्कस हो जाए। इफ द एग्जामिनर अगर उस की में शामिल है कि ये एक अगला क्वेश्चन आने वाला जो अगला क्वेश्चन है, यानी प्लान ऑफ मैनेजमेंट बताते बताते अगर आपने बताया कि इसकी मैंने इतने वीकली जो है वो इन्वेस्टिगेशन ये करानी है, इतने वीकली अल्ट्रासाउंड करवाना है, इतने वीकली उसकी विजिट्स होनी चाहिए, आप उसको होम एडवाइस क्या दोगे, दिस ऑल थिंग्स हैव उसके साथ डिस्कस करते हुए बीच में एग्जामिनर अगर आपको एक सवाल पूछ लेता है कि सपोज एट आफ्टर अनदर 2 weeks she develops fever and she develops a purulent vaginal discharge, इस तरह की भी चीज हो सकती है। या आफ्टर another 2 weeks उसका जो ब्लड शुगर या उसको कोई कीटोएसिडोसिस वाले साइन सिम्टम्स आना शुरू हो जाती है, she feels unwell और उसका जो है वो ये चीजें आती हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। और प्री टर्म डिलीवरी के क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, इस वक्त जो हैं वो हमने क्या एडिशनल प्रिकॉशंस करनी है उसके लिए, ये सब चीजें हैं जो कि इसमें फिर आ जाएंगी, बिकॉज शी इज अ केस ऑफ प्रॉम। और डायबिटिक्स में प्रॉम होने के और प्रॉम्स के कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज इट प्रीडिस्पोजेस टू डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेक्शंस both vaginal, not only vaginal and urinary tract but also the systemic infections भी। तो इसलिए ये सारी चीजें जो आपके जहन में होनी चाहिए। नाउ अब हम इसमें काउंसलिंग में कुछ और तो नहीं बताने वाली चीज आपकी एक्सेप्ट के जो हमने डिस्कस कर लिया। मैडम यही था सब कुछ है, आपने एक सारी कॉम्प्लिकेशन एडिशनल रिस्क फैक्टर्स भी आपको बता दिए। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि हम ये द पेशेंट विल बी मैनेज एज कंजर्वेटिवली and will depend upon and all the management plan will depend upon the condition of the fetal maternal surveillance। fetal maternal monitoring पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। और पेशेंट ये पूछेगा कि अच्छा ये इस दफा भी सेक्शन होगा या वेजाइनल डिलीवरी होगी, तो जाहिर है अगर प्रीवियस सेक्शन के साथ कोई भी कोमॉर्बिडिटी हो तो आप सेक्शन की तरफ ही जाते हैं। मैडम अगर यही पेशेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे लीकिंग हो गई है एंड यही पेशेंट जो है प्रोस्टाग्लैंडिन ऑलरेडी रिलीज हो रहे हैं, तो ये तो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस लेबर में भी चली जाएगी। ये तो ऐसे पेशेंट क्या हो जाए, सॉरी दोबारा से बताइए। आई वाज सेइंग कि ऐसा पेशेंट जो है जिसकी इतनी फ्रैंक लीकिंग हो रही है, प्रीवियस स्कार है, ये तो स्पॉन्टेनियस लेबर में चली जाएगी एज अ देखो अब डिपेंड करता है इस पे, क्योंकि सपोज के इसकी प्रेजेंटेशन भी ठीक है, कोई और ऑब्स्टेटिक इंडिकेशन मतलब उस तरह से वो नहीं है, यानी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन टू वेजाइनल डिलीवरी नहीं है। यस मतलब इसमें प्री टर्म जो इसमें है, जैसे कोरिया अमनियोटाइटिस डेवलप हो गया या फर्स्ट के वो पेशेंट खुद से लेबर में चली जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉम, उसमें लेबर में जाने के तो चांसेस होते हैं। तो उस वक्त फिर आपने फीटल स्टेटस पे डिफाइन करना है। देखो जो डायबिटिक मदर्स के जो बच्चे हैं, जो फीटस है, इसमें आपने मुझे बताया 31 वीक्स पे 2.2 kg है, तो 2.2 kg इज रिलेटिवली ऑन हायर साइड, जो यानी उसका थोड़ा सा लार्जर फॉर डेट्स की कैटेगरी में ये आ जाएगा। तो लेकिन चूंकि 2.2 आपकी क्लिनिकल एस्टिमेशन है, वो फाइनली तो हमें अल्ट्रासाउंड पे ही पता चलता है कि कितना है। 30 वीक्स की फीटल बायोमेट्री है और 31 वीक्स के है, तो प्रोबेबली ये उस हिसाब से बायोमेट्री के हिसाब से मैक्रोसोमिया नहीं लगता। और लेकिन अगर हम आपके वेट पे जाएं तो वो थोड़ा सा रिलेटिवली एलिमेंट है, सो दैट इज नॉट एन एब्सोल्यूट फिगर, वो एक रिलेटिव फिगर है। तो बहरहाल इसमें ये है कि अगर कोई अगर ये इन्फेक्शन हो गया या उसको प्री टर्म लेबर में चली जाती है, यस देयर इज चांस कि हम इसको ट्रायल ऑफ लेबर दे दें,
लेकिन ऐसे पेशेंट्स की फीटल डिस्ट्रेस में जाने के चांसेस होते हैं एंड इन एडिशन टू द रिस्क ऑफ द प्रीवियस सेक्शन, जो कि इसमें एडिशनल होगा। वो टर्म वाला रिस्क और प्री टर्म वाला रिस्क ऑलमोस्ट तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, 31 और 40 वीक्स वाला जो है। तो इसमें आपको फिर बहुत सारी चीजों पे डिसाइड करना पड़ेगा, वेदर टू गिव हर ट्रायल ऑफ लेबर और नॉट। अगर तो फ्रैंक वो हो, इसमें कोरियम नियोनाइटिस है, यानी कोरियम नियोनाइटिस का फुल ब्लॉन सिंड्रोम, इट इज ऑलवेज बेटर टू डिलीवर हर vaginally rather than doing for the cesarean section. लेकिन अदरवाइज आपने फिर उस वक्त इंडिविजुअल मैटरनल और फीटल स्टेटस पे डिसाइड करना है, और बिल्कुल अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल्स के साथ भी वेजाइनल डिलीवरी इज रिलेटिवली अ सेफर चॉइस। एनेस्थीसिया, कॉम्प्लिकेशन, ये सब चीजें और इसमें एडिशनल आ जाती हैं। और इस तरह जो फ्रैंक कोरियम नियोनाइटिस है उसमें भी वेजाइनल डिलीवरी इज अ सेफर चॉइस। लेकिन अगर लाइकर बहुत कम हो जाए ड्यू टू फ्रैंक ड्रेनेज ऑफ द, अगरचे वो लाइकर का कम होना फिजियोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल नहीं है, और फिजियोलॉजिकल ओलिगोहाइड्रामियोस में इसमें जो है वो इसमें कर सकते हैं, ट्रायल दे सकते हैं, क्योंकि उसमें प्लेसेंटल पैथोलॉजी वाला फैक्टर नहीं होता। लेकिन फिर भी उस वक्त के स्टेटस के हिसाब से फीटल मूवमेंट कैसी है, सीटीजी कैसी है, और बाकी मैटरनल स्टेटस कैसा है, इन सब चीजों पे आप डिसाइड करो, ठीक है। लेकिन इसमें डेफिनेटली इसमें कोई एब्सोल्यूट वो नहीं है कि आप जरूरी सेक्शन करें। हिस्टेरोटमी करना इज अनदर बिग डिसीजन, क्योंकि हिस्टेरोटमी के फिर आगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, वो भी सारी चीजें, और प्री टर्म बच्चा निकाल के उसका फीटल प्रोग्नोसिस भी इज वेरी गुड, ठीक है। मैडम मुझे अगर ये प्रोलॉन्ग कंफर्म करना था हो तो कि कितना प्रोलॉन्ग हाँ जी। करेंगे प्रेगनेंसी को? मैडम अगर प्रोलॉन्ग करना हुआ प्रेगनेंसी को तो कितना करेंगे, मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे? देखो प्रोलॉन्ग प्रोलॉन्ग करने के करने को लिए तो आप 6 हफ्ते भी कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है ना कि इससे डायबिटिक के साथ आगे चीजें कैसे चलती हैं। अब HVS की रिपोर्ट के मुताबिक आप इसको, अब देखो HVS, अब ये जो थी ना हमारी जो एरिथ्रोसिन और ये सब चीजें, ये बहुत अच्छे वक्तों में काम करती थी। अब जो हम देखते हैं, जो पैटर्न देखते हैं वेजाइनल फ्लोरा का, वो बहुत फर्क है ड्यू टू इमरजेंस ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो वेजाइनल फ्लोरा का जो HVS पे जो रिपोर्ट आएगी, आपने उसके हिसाब से कुछ लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स इसको देने हैं। सपोज अब बैक्टीरिया कैसे आते हैं, उस पे उसकी विरुलेंस पे भी डिपेंड करता है कि हाउ लॉन्ग यू कैन प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी। इसमें आपने स्टीरॉयड दे दिया, और इसमें बाद आप न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट भी दे सकते हो, और लेकिन HVS की रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा, इसके बाकी साइन सिम्टम्स ऑफ कोरियम नियोनाइटिस पे डिपेंड करेगा। बाकी डायबिटीज के लिए तो आपने स्टार्ट करना ही है, जो सारा कुछ करना है वो अभी वही हैव येट टू डिस्कस दैट। तो ये सारी चीजों पे बेस करेगा, और फिर उसका CRP भी नॉर्मल है बिल्कुल। इसमें मल्टीपल वेजाइनल चेक्स को और ये सब चीजों को जो है वो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज CRP सो फॉर इज नॉर्मल, बट फॉर हाउ लॉन्ग इट रिमेन्स नॉर्मल यू डोंट नो, नो वन नोस। इसलिए इसको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। TLC इज विद द नॉर्मल लिमिट्स ऑफ प्रेगनेंसी, TLC रेस्ट नहीं है, 17,000 तक नॉर्मली प्रेगनेंसी में बढ़ सकता है। तो इन चीजों के ऊपर आप बेस करोगे, ये सब क्लिनिकल इन्फेक्शन को नोटिफाई करेंगी। क्लिनिकल इन्फेक्शन तो तभी होगा ना जब पेशेंट को फीवर और पुरुलेंट डिस्चार्ज और टेंडरनेस और ये सब चीजें होना शुरू हो जाएंगी। तो मैम इन्फेक्शन हो जाएगी। मकसद ये अगर कोरियम नियोनाइटिस डेवलप हो जाता है, दैट इज एन अर्जेंट इंडिकेशन फॉर डिलीवरिंग द बेबी। लेकिन अदरवाइज आप उसको मैम कोरियम जी मैम मैम, अक्सर ना CRP ऐसे के- होता है मैम, कि ये ये जो CRP है ना वो कभी 7-8 आया होता है या TLC 18 तक होता है, बहुत रेज नहीं होता, लेकिन पेशेंट को साफ फीवर नहीं होता, टैकीकार्डिया कोई और साइन सिम्टम नहीं होते, यानी कि सिर्फ बायोकेमिकल डिरेंजमेंट आ रही होती है। तो उस बेस पे हमें डिलीवरी प्लान कर लेनी चाहिए या हमें वेट करना चाहिए कि फीवर नहीं, हो देखो आप और उसको यूट्राइन रेगुलरली टेंडरनेस फॉलो लगे। कर रहे हो। CRP जो है ना, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स इन्फेक्शन की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से भी रेज्ड हो सकती हैं। लेकिन अगर CRP ग्रेजुअली राइज कर रहा है, यानी ग्रेजुअली वो राइज कर रहा है, एक स्टैटिक लेवल पे ना हो, अगर वो ग्रेजुअली राइज कर रहे हैं, स्टैटिक लेवल पे करने की जरूरत नहीं है, विद द इंक्रीजिंग लेवल्स आप उसमें कंसिडर कर सकते हो। लेकिन क्लिनिकल साइन ज्यादातर जो है वो ये तो सब क्लिनिकल को हमें बताएगा ना, उसके हिसाब से आपने अपनी रिव्यू करनी है। इसका मतलब है एंटीबायोटिक्स टू सम एक्सटेंट आर कवरिंग द इन्फेक्शन बट नॉट
टोटली। इसलिए आप एंटीबायोटिक्स को भी रिव्यू करते हो कि क्या इसमें एक्सटेंडेड जो है उसमें ट्रीटमेंट उसमें आपने देनी है या नहीं देनी। मैम सीआरपी कितने सीआरपी इस पेशेंट में जो है मैम, सीआरपी इस पेशेंट में इस वक्त नॉर्मल आ रहा है, तो हाँ जब जी, मेरे इस पास वक्त पेशेंट एडमिट है, अगर मेरे पास पेशेंट एडमिट है तो क्या मैं इसको ऑल्टरनेट डे पे करवाऊंगी या मैं इसको नहीं ट्वाइस नहीं, और वीकली देखो अगर ये नॉर्मल है तो फिर इसमें ट्वाइस अ वीक इज ओके, अब प्रोवाइडेड कि आपने उसको कोई मल्टीपल वेजाइनल वो नहीं की और उसकी जरूरत होती भी नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हम इन्फेक्शन उसी वजह से इंट्रोड्यूस कर रही होती है, तो फिर ट्वाइस अ वीक इज ओके। लेकिन अगर ये ऑलरेडी कुछ बॉर्डर लाइन लिमिट पे है या इंक्रीज्ड लेवल्स हैं तो मे बी यू हैव टू डू इट ऑन ऑल्टरनेटिव्स। इन एब्सेंस ऑफ क्लिनिकल इन्फेक्शन हो गया तो फिर तो हमने करना ही करना है ना, फिर सीआरपी कैसा भी हो हमने उसको करना ही करना है। लेकिन अगर सब क्लिनिकल है और वो रेस्ड आ गई बेसलाइन रीडिंग तो फिर उसको ऑल्टरनेटिव पे करवाओ, अदरवाइज ट्वाइस अ वीक इज ओके। अच्छा मैडम, मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे समझिए कि हम डेफिनेट बात है कि स्पेक्ट्रम एग्जामिनेशन में आपने पीवी नहीं करी, फिर हमने 2 वीक से उसको छोड़ दिया, ठीक है सीआरपी भी नॉर्मल है, लेकिन अब डिस्कलर्स का चेंज हो रहा है, डिस्चार्ज लीकिंग का सही है, कुछ येलोइश सा होना शुरू हो गया, ऑल्दो कोई फीवर नहीं है, कोई टेकिकार्डिया कोरियो के अलामात नहीं है, फिर हम इसका क्या करेंगे? हम लोग देखो पे जब आप एंटीबायोटिक्स देते हो ना तो बाल दफा वो उसको सप्रेस कर रहा होता है विद द एक्चुअल जो उसका जो कोर्स ऑफ डिजीज है उसको सप्रेस कर रहा होता है, बट नॉट कंप्लीटली। दैट इज व्हाई इधर द सीआरपी में भी रेस्ड या उसका जो उसका लाइकर है उसका कलर चेंज हो गया, मतलब फ्यू थिंग्स आर पॉजिटिव बट नॉट अ फुल ब्लॉन सिंड्रोम ऑफ कोरियोनिनाइटिस। तो ऐसी सूरत में आप उसको अगर तो उसका बिल्कुल जैसे येलोइश कलर है या जस्ट लाइक फर्स्ट डिस्चार्ज उस तरह से आपको लग रहा है, पसी डिस्चार्ज पता चल ही जाता है देखने से, स्टिल दैट विल बी एन इंडिकेशन फॉर डिलीवरिंग द बेबी। और अगर हम लोग पीवी करेंगे, अगर हम लोग कोई करना हमें पीवी इंटरवेंशन आप क्यों लेनी है, करना चाहते हो मुझे पहले नहीं ये करेंगे बताओ। ना अगर पीवी? अगर फर्ज किया आपने उसको ट्रायल ऑफ लेबर देने का इरादा कर लिया है जी तो फिर तो उसमें चलो एक बेस लाइन वो भी आप स्टेराइल उसके साथ करो, ग्लव्स के साथ करो। मसला तब होता है जब नॉन स्टेराइल एग्जामिनेशन ग्लव्स के साथ जो है वो पेल्विक किया जा रहा होता है जब डिसीजन और लेना हम है इसमें तब इतना हम बॉदर करें। भी नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो अच्छा। उसमें फिर ये जो है क्योंकि इसमें आपने बहुत जो है वो उसमें विजिलेंटली इसमें बेसिकली ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन will be an indication for termination of pregnancy. Onset of infection may be subclinical, may be clinical. Clinical जो है सब क्लिनिको को आप फिर भी फॉलो कर रहे होते हो with the continuation of antibiotics. With the clinical manifestation of infection, despite using these antibiotics, उसमें आपने हर हाल में उसको टर्मिनेट करना हो। Then there और is अगर no वो 1.5 ही है, मैम 2 ये तो हम सेंटीमीटर है, तो मैं सिर्फ मैम लेबर ये के तो लिए हम वेट 14 करूंगी उसको। जी अगर 2 सेंटीमीटर ही है पेशेंट, 2 वीक से बाद भी ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस नहीं है, फिर भी मैं उसको डायलेट होने का वेट करूंगी कि नहीं, लेकिन किस नहीं सूरत में आप डायलेट होने का वेट करोगे? ये वो वाला सिनेरियो है जिसमें आपने डिलीवर करना है या कंटिन्यू करनी है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट? नहीं मैडम, ये कोरियो में चले गई है पेशेंट, कोरियो में आ गई है। इसमें बेसिकली जो डायलिटेशन है उससे ज्यादा मैटर करता है कि ये बेसिकली सिनेरियो क्या बन रहा है आपका, कोरिया में समझे, ये नाटक कोरियो वाला में आ गई सिनेरियो है, है पेशेंट या है नहीं डायलेटेड नहीं है। शी नहीं, हैज अ डायलेटेड तो नहीं है वो, मेरी बात सुने, इसमें डायलेट होना या ना होना ज्यादा उससे ज्यादा मैटर करता है कि पेशेंट के साइन सिम्टम्स क्या हैं। 2 सेंटीमीटर पे पेशेंट कैन रिमेन इवन फॉर वीक्स, इवन फॉर 6 वीक्स। मेरा एक पेशेंट है जो 3 सेंटीमीटर पे पिछले 5 हफ्ते से है। She was diagnosed to be 3 centimeter dilated and almost 50% उसकी cervical effacement at 31 weeks and now she has entered 38 weeks. तो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि पेशेंट के साइन सिम्टम्स क्या हैं। अगर उसके साइन सिम्टम डेवलप हो रहे हैं तब आप उसकी प्री टर्म डिलीवरी करें, वरना आप ना करें। वरना आप देखो प्री टर्म डिलीवरी को हर हाल में अवॉइड करना होता है, बट कीपिंग एवरीथिंग इन द सेफ लिमिट, जिससे मदर को भी नुकसान ना हो, बच्चे को भी नुकसान ना हो। अगर आपने बच्चे को टर्म तक ले जाने की कोशिश की या उसको और एक्सटेंड करने की कोशिश की इन प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन,
तो यू आर डूइंग मोर डैमेज देन द गुड। तो इसलिए इन्फेक्शन और उसके बाद उसकी आगे मजीद फर्टिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है जब एंडोमेट्राइटिस हो जाएगा, सेल्फिंजाइटिस हो जाएगा, एंड रिजल्ट कैन बी ट्यूबल ब्लॉकेज, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए जो है वो आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखना है कोरियम नियोनाइटिस के, बिकॉज प्री टर्म बच्चे में इन्फेक्शन का होना उसकी मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी को कई गुना बढ़ा देता है। तो प्री टर्म बच्चा आप इन एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन निकालोगे उसका प्रोग्नोसिस ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए मैम ये हाँ जी एंटीबायोटिक मैम कब तक हम वैसे तो हम एरिथ्रोमाइसिन जो है वो 14 डेज के लिए देते हैं, लेकिन अगर हमें कंटिन्यू करना पड़े तो हम अकॉर्डिंग ज्यादातर हम 2 वीक्स के लिए ही देते हैं जिसकी भी ससेप्टिबिलिटी आए, यानी HVS पे। अब बाद दफा बड़ा एक जो मतलब डिफिकल्ट सिनेरियो होता है वो ये कि HVS पे कुछ ऐसे एबनॉर्मल पैथोजेंस आ जाते हैं which are sensitive to injections only। अब पता नहीं आप लोगों का क्या उसमें ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये है कि इसमें अब जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं वो काफी ज्यादा आ रही होती है। तो इसमें बार दफा उन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स की जो सेंसिटिविटी है वो आती ही कुछ इंजेक्टेबल्स को है। तो इंजेक्टेबल्स तो आप नहीं कंटिन्यू कर सकते, उनको फिर एटलीस्ट आप कम से कम 10 डेज के लिए देते हो फिर भी, क्योंकि अगर आप इस अब देखो डायबिटिक्स में लंग मैच्योरिटी का इशू अपनी जगह, उसमें समझो कि 2 वीक्स की उसकी लंग मैच्योरिटी पीछे ही चल रही होती है। तो इसमें एक तो प्री मैच्योरिटी, फिर प्रॉम, फिर ऊपर से डायबिटिक, तो बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्ट चीज हो जाती है फॉर द नियोनेटल सर्वाइवल, उसका प्रोग्नोसिस कॉम्प्रोमाइज होता है। तो इसलिए जो है वो आपने एंटीबायोटिक्स अकॉर्डिंग टू कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट इफ इट अगर ये आ जाती है एरिथ्रोसिन वगैरह को, तो वेल एंड गुड, यू कैन कंटिन्यू इट फॉर 2 वीक्स एंड इवन लेटर ऑन भी इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। इन सम केसेस आप बाद दफा 3-3 हफ्ते भी दे सकते हो, लेकिन आपने 6 हफ्ते प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग करनी है तो 6 हफ्ते देने का कोई फायदा नहीं। कॉमनली इसको 2 वीक्स के लिए ही दिया जाता है। और मैडम डॉक्टर अगर इसका हाई में वजाइनल में स्वाब पे ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस आ जाता है तो इसकी टाइम ऑफ डिलीवरी का क्या, हम कैसे क्या टाइम ऑफ ग्रुप डिलीवरी बी होगी? स्ट्रेप्टोकोकस जो है ना वो विजाइनल और रेक्टल GI फ्लोरा होता है, ठीक है। इसमें इंटेस्टाइन में भी और विजाइना में भी ये फ्लोरा है एंड इट इज द मोस्ट कॉमन पैथोजेंस जो कि प्री टर्म लेबर की वजह बन जाता है समटाइम्स फॉर द प्रॉम। और अगर ये ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का जो अगर आ जाता है कल्चर पे, जाहिर है हमें पता चल जाएगा। तो अब ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का बेसिकली कवरेज हम उस वक्त देते हैं जब वो पेशेंट प्री टर्म लेबर में चला जाए, क्योंकि उस वक्त उस बच्चे के इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं जब वो जेनिटल ट्रैक्ट से डिलीवर हो रहा होता है। यानी ये अर्ली नियोनेटल सेप्सिस की सबसे कॉमन वजह है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। इसी वजह से इसमें स्क्रीनिंग की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसा पेशेंट जिसको प्रॉम हो गया और उसमें हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर रहे हैं और उसमें जो एक ऑर्गेनिज्म आ गया ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस प्रेजेंस in presence of prom and in absence of preterm labor also needs to be treated, क्योंकि sending infection हो सकता है, baby still can be affected चाहे वो अभी डिलीवर नहीं भी हो रहा। वरना यूजुअली प्री टर्म लेबर में भी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस की स्क्रीनिंग करवाई जाती है एज अ रूटीन। इट शुड बी डन एज अ रूटीन, जो हम नहीं कर रहे होते। लेकिन गाइडलाइन के मुताबिक इसमें हर वो पेशेंट जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस से या जिसमें प्री टर्म लेबर हो, उसमें ये स्क्रीनिंग करानी मस्ट है, लेकिन हम नहीं करा रहे होते। तो उस सूरत में जब हम नहीं करा रहे होते तो उस सूरत में प्री टर्म लेबर वाले हर पेशेंट को हम वो एंटीबायोटिक देते हैं जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट इफेक्टिव होती हैं। और वो जो हैं वो तकरीबन सेफेलोस्पोरिन की सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन को इफेक्टिव होती हैं, इवन एम्पिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स को भी सेंसिटिव होती हैं, तो वो हम दे सकते हैं। बट विद इंटैक्ट मेम्ब्रेन्स जो एंटीबायोटिक्स हम देते हैं ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के लिए, दैट शुड बी गिवन इन एन एडिक्वेट डोज, और इंट्रावीनस फॉर्म में हम दे रहे होते, हम अमूमन ऐसा नहीं कर रहे होते, हम ओरल फॉर्म में दे रहे होते हैं। ओरल फॉर्म में उसकी जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कंसंट्रेशन है वो बिल्डअप नहीं हो रही होती, बिकॉज फॉर इफेक्टिव फीटल प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस
every patient undergoing preterm labor should receive prophylaxis of the group B streptococcus. Term labor पे ये मसला नहीं होता, क्योंकि group B streptococcus is considered to be an important cause for preterm labor as well as for PROM. तो PROM में conservative management, group B streptococcus analyze हो गया, give antibiotic cover. अब उसमें चूंकि अब जब बेबी इंटैक्ट मेम्ब्रेन के अंदर होता है तो उस मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन डेवलप होना जरूरी होता है, लेकिन जब मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड हैं तो फिर हम उसको जो है वो उसका फिर भी हमें इंजेक्टेबल फॉर्म में प्रेफरेबली देनी चाहिए, लेकिन अगर उसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी इज टुवर्ड्स सम अदर ओरल एंटीबायोटिक्स तो फिर हम प्रेफरेबली ओरल एंटीबायोटिक्स को लॉन्ग टर्म बेसिस पे दे देते हैं बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, क्योंकि ये कॉस्ट अमूमन पेशेंट की अपनी पॉकेट से जा रही है। तो ये चीजें हैं थोड़ा सा आपको जो फैक्ट्स के ऊपर पे आपने बात करनी है। रप्चर्ड मेम्ब्रेन में तो आपको एक्सपेडाइट करनी है ना अगर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस आ रहा है डिलीवरी को। अगर ठीक है, देखो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस में आप एंटीबायोटिक कवर दे रहे होते हो टू प्रिवेंट फ्रॉम दैट इन्फेक्शन। देखो एचवीएस का मकसद क्या है, आप विजाइनल पैथोजेंस को आइसोलेट करते हैं, विजाइनल पैथोजेंस को आइसोलेट कर लिया, अब आपको पता है ये वाला बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक सेंसिटिव है वो आपने देनी है। अगर आप उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर रहे हो तो फिर उसमें फिर इमीडिएटली जो है वो डिलीवर करवाने की उस तरह से जरूरत नहीं होती अनलेस कि उसमें कोई साइन सिम्टम्स आ जाए। अब मुझे ये बताओ कि एचवीएस कितने पेशेंट्स के हम एचवीएस करवाते हैं और उसमें ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस आता है? मैडम रेयरली, हार्डली, बहुत रेयरली। सो अगर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो, क्योंकि ज्यादातर तो ई कोलाई की ग्रोथ आती है, ई कोलाई कैन बिकम पैथोजेंस अंडर सर्टेन कंडीशंस, जैसे डायबिटिक प्रेगनेंसी में भी ये पैथोजेंस की शेप इख्तियार कर लेते हैं। नॉर्मल विजाइनल फ्लोरा से हट के ये यूजुअली तो ये नॉर्मल फ्लोरा में होते हैं के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं, गट का फ्लोरा है, विजाइना का फ्लोरा है अलोंग विद द डॉटरलीन बैसिलाई। लेकिन ये है कि ये जब पैथोजेंस बन जाते हैं जैसे डायबिटिक प्रेगनेंसी में उसका जो उस वक्त जो सारा सेलुलर स्टेटस है, सेलुलर डिहाइड्रेशन, वेस्कुलराइजेशन इफेक्ट होती है, उसमें ये पैथोजेंस कन्वर्ट हो जाते हैं। सो यू गिव एंटीबायोटिक कवर टू दैट। अब ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के साथ जब आ जाता है तो अगेन गिव, क्योंकि देखो इसमें डायबिटिक प्रेगनेंसी 31 वीक्स वो सारी चीजें हैं। अगर ये फर्ज किया 36 पे हो जाए, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस हो जाए, बेटर गो एंड डिलीवर द बेबी, ठीक है। लेकिन इसमें पूरा उसका कवर फिर भी देते हुए, ठीक है मैम इसमें इंसुलिन देंगे ना पेशेंट को, इंसुलिन देंगे ना? उसकी तरफ तो हम अभी तक आ ही नहीं सके, आई नहीं पहुंचे ही नहीं अब इसमें। देखो इसमें उसकी तरफ हम नहीं आ सके अभी तक। अब इसमें जहां तक इसका फास्टिंग 105 और पोस्ट प्रेंडियल 200, इसमें आप क्या सोचते हैं कि इसमें शुड वी स्टार्ट विद द ओरल और शुड वी स्टार्ट विद द इंसुलिन राइट नाउ? नो मैडम, इसमें ना जैसे मैंने इसको एज आई एडमिटेड द पेशेंट तो मैं 6 टाइम जैसे शुगर मॉनिटरिंग करूंगी, मैंने इसको लाइफस्टाइल के बारे में बता दिया है, डाइट के बारे में इंस्ट्रक्ट कर दिया। अब मैं इसे 24 आवर्स देखती हूँ, अगर फिर भी रेज रहती है तो फिर मैं इसे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक स्टार्ट कर दूंगी। देन आई विल ऑब्जर्व हर, वैसे अगर ये एडमिट है पेशेंट तो फिर तो मैं इसको 72 आवर्स तक देखूंगी ना। और लेकिन अगर ये इसको डिस्चार्ज कर दिया मैंने तो पेशेंट को बोलूंगी तो मेरे पास 2 वीक्स के बाद आओ, एंड देन आई विल थिंक अबाउट ऑन द रिजल्ट्स कि मुझे इंसुलिन की नीड है या नहीं, या कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है तो फिर मैं करूंगी। और अगर देखो अब इसके थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जरा कंट्रोवर्सी पाई जाती है, वो इसलिए कि ये एक नॉर्मल डायबिटिक प्रेगनेंसी का केस नहीं है। इसमें एक एडिशनल कॉम्प्लिकेशन होगी प्रॉम की। प्रॉम जब हो गया तो मे बी इसके पीछे फैक्टर विजाइनल इन्फेक्शन है, मे बी प्रॉम की वजह से इन्फेक्शन हो जाए या कोरियम नेनाटस हो जाए, जो एग्रीवेट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर प्रोफाइल। तो हमें इसमें थोड़ा सा क्विक एक्शन फास्ट फॉरवर्ड लेना पड़ेगा। यानी फास्ट फॉरवर्ड का मतलब ये है कि जो अवेलेबल थेरेपी है आपने राइट नाउ शुरू करनी है, यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, डाइट कंट्रोल के साथ आप इसको ओरल हाइपोग्लाइसीमिक भी दे सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि देखो फास्टिंग लेवल इज 105
or postprandial is 200, which will be managed by diet control as well as by glucophage. ठीक है, ये दोनों चीजें शुरू करेगी। आप इसको 72 आवर्स के लिए वेट ना करें, क्योंकि उसमें डाइट कंट्रोल, आप इसको बेसिकली हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट स्टार्ट कर दें और उसी के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विल गो साइड बाय साइड। वो आप चाहे इंसुलिन भी दे रहे हो, चाहे आप मेटफॉर्मिन भी दे रहे हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो चलती है इन सब चीजों के साथ। अलबत्ता अगर ये प्रॉम का केस ना होता तो फिर आप इसको 72 आवर्स देते, इसको देखते कि ये कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ। डिजायर्ड डाइट अगर अच्छी आप कंट्रोल करोगे तो ये पोस्ट प्रेंडियल है, ये मैनेज हो भी सकता है, विद इन नॉर्मल लिमिट्स आ भी सकता है। तो इसलिए जो है वो उसको, उसमें टाइम मार्जिन उतना हमारे पास है, बट हियर द सिचुएशन कैन चेंज डे बाय डे। तो इस वजह से जो है वो इसको आपने हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट अभी शुरू कर देना है। अलबत्ता स्टार्ट करवाएंगे जी मैम, आप कितना स्टार्ट करवाएंगे, 500 बीटी में या टीडीएस? सॉरी, मुझे अभी भी आपकी बात की समझ नहीं आई। मैम आप मेटफॉर्मिन इसको कितना स्टार्ट करवाएंगे, 500 बीटी में या टीडीएस में? 500 BD में इनिशियली यू विल स्टार्ट विद द 500 BD, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है उसके बॉडी वेट पे भी, क्योंकि कोई भी ड्रग आप जो देते हैं वो बॉडी वेट के हिसाब से उसकी डोज कैलकुलेट होती है। एक 60 किलो की पेशेंट और एक 90 किलो की पेशेंट में ड्रग रिक्वायरमेंट बहुत फर्क होती है। तो अगर 60 किलो की मरीज है तो BD है, अगर उससे ज्यादा है, 80 से ऊपर है, तो फिर आप इसको TDS कराओगे। सो डिसाइड इट अकॉर्डिंग टू द BMI ऑफ द पेशेंट। जैसे इंसुलिन को हम वेट के हिसाब से हम करते हैं, वो इसलिए कि जितना वेट ज्यादा होगा उसकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, एंड सो इज विद ऑल अदर मेडिसिन। इवन एंटीबायोटिक्स की कैलकुलेशन वेट के हिसाब से होती है। आप एनेस्थीसिया को भी वालों को देखो, वो भी वेट के हिसाब से ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है वो इवन जो विनोफारिन देते हैं वो वेट के हिसाब से कर रहे होते हैं। ये तकरीबन हर ड्रग पे ये एप्लीकेबल होता है, और इसी तरह इसके ऊपर भी है। अब इसमें इसकी मिनिमम डोज और मैक्सिमम डोज की भी एक लिमिट है जो हम मेटफॉर्मिन की देते हैं। सो एनी टाइम यू कैन रिमेन विद इन दैट रेंज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम। मैडम मुझे एक और चीज पूछनी है मैम कि अगर गाइडलाइन, समझो मैम ये गाइडलाइन, एक मिनट मैम, गाइडलाइन में जो रेंज दी हुई है इंसुलिन स्टार्ट करने की, उन्होंने कहा है 6 से 6.9 मिलीमोल पर लीटर, यानी कि 108 मिलीग्राम पर डेसिलिटर विद कॉम्प्लिकेशन। तो मैं असल में उसका पूछना चाह रही थी आप। हाँ जी, क्या उसमें क्या पूछना चाह रहे थे? दैट इज मतलब वेरी क्लियर। मैम इसका जो है 105 आया ना, तकरीबन हाँ जी, ये हाँ जी। बॉर्डर लाइन है, तकरीबन 108 Border और line है। 105 में सिर्फ बॉर्डर लाइन। तो मैं इसका पूछना हाँ। चाह रही थी कि आप कह रही ना 24 मतलब 72 घंटे हम ना देखें ना, मतलब थोड़ा टाइम रिड्यूस हाँ, कर दें, हाँ। 48 देखो, घंटे ले लें। 72 घंटे ना दो, लेकिन कम से कम ओरल तो शुरू कर दो। ओरल से अगर फर्ज किया आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा, देन यू कैन स्विच ऑन टू द इंसुलिन। 48 आवर्स। हाँ, दैट इज एनफ टाइम पीरियड। आपको कुछ ना कुछ उसका पैटर्न डिक्लाइनिंग लेवल्स पता चल जाएगा। ये मैंने कहा है कि 72 आवर्स उसको खाली डाइट और एक्सरसाइज पे ना रखो, क्योंकि प्रॉम है उसका जो जिसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है। नहीं मैम, मैं ये कहना चाह रही थी 6 से 6.9 मिलीमोल का है, बॉर्डर लाइन है, तो उस पे फिर हम, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन है, पी प्रॉम एक कॉम्प्लिकेशन के साथ उन्होंने गाइडलाइन वालों ने 6 से 6.9 पे इंसुलिन स्टार्ट की हुई है। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि इसका 105 पे तो हम फिर देखो, इसमें कॉम्प्लिकेशन जो है वो प्रॉम तो है ना इसमें। अब बात ये है कि मैंने पहले ही कहा था कि ये वो ग्रे एरिया है जहां आप हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के तौर पे आप इसमें जा सकते हो। एडिशनल कॉम्प्लिकेशन होती हैं जहां पे फीटल कॉम्प्लिकेशन होगी, मैक्रोसोमिया होगा, पॉलीहाइड्रामिनीज होगा, BMI बहुत ज्यादा, वो फीटल कॉम्प्लिकेशन है। प्रॉम कॉम्प्लिकेशन के तौर पे उस तरह से मेंशन्ड नहीं है गाइडलाइंस में। लेकिन ये जो प्रॉम जो है, ये हमें पता है कि एक कॉम्प्लिकेशन वो है जो डायबिटीज की वजह से नहीं हुई, सिर्फ उसमें विजाइनल पैथोजेंस हो सकता है, इनडायरेक्टली डायबिटीज से रिलेटेड हो। तो प्रॉम वो चीज है जो उसको प्रीडिस्पोज करेगी टुवर्ड्स इट्स ओन लिंक्ड कॉम्प्लिकेशंस। अब वो जो है लिंक्ड कॉम्प्लिकेशन वो ज्यादा एग्रीवेट करेंगी अगर हाइपरग्लाइसीमिया होगा। तो हमें कंट्रोल करना, इन्फेक्शन मुश्किल होता है ना, कोई भी विजाइनल डिस्चार्ज हो या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, तो उसमें हम हमेशा कहते हैं कि अपना डायबिटिक कंट्रोल बेहतर करें। हम सर्जरी से पहले डायबिटिक कंट्रोल बेहतर करते हैं कि वो इन्फेक्शन वगैरह ना हो। लेकिन अब इसमें प्रॉम जो है वो
उसमें अगर जो डायबिटिक्स में होने के चांसेस इसलिए ज्यादा होते हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली उसकी वजह से हुई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशन है वो मैक्रोसोमिया और पॉलीहाइड्रामियोस है। तो इसलिए वो कॉम्प्लिकेशन से हट के हम बात करेंगे। प्रॉम में आपने वेटिंग टाइम पीरियड नहीं देना 72 आवर्स का विदाउट यूजिंग हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, बट what to use as hypoglycemic agent can be oral, can be injectable, and this is based on certain other criteria. उस क्राइटेरिया में आप वो कॉम्प्लिकेशन ले आओ जो उसके साथ डायबिटीज के साथ लिंक्ड हैं। यानी अगर इसमें मैक्रोसोमिया ऑलरेडी है, अगर इसमें पॉलीहाइड्रामियोस था और उसकी वजह से प्रॉम हो गया, तो उस सूरत में आप उसको राइट फ्रॉम द बिगनिंग इंसुलिन पे शुरू कर दें। और अगर फीटल कॉम्प्लिकेशन सो फार हैज नॉट बीन डिटेक्टेड और फास्टिंग भी उसका बॉर्डर लाइन पे है, पोस्ट प्रेंडियल 200 है, तो उसमें अब ये हमें नहीं पता ओजीटीटी के बाद है या वैसे है, अभी हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता। जब आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हो ना, तो बेसिकली आपको क्लियर पिक्चर उस पेशेंट की मिल जाती है। तो अभी हम सिर्फ कुछ assumptions पे बात कर रहे हैं। तो इसके साथ you can start with the metformin, you can start with the insulin। तो उसको बेस करो कि उसके साथ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन क्या है, मैटरनल या फीटल। मैडम इसमें ये था कि मैडम वाला मैम दिया हुआ उन्होंने डॉक्टर दीपा को पूछने में criteria- काफी देर से डॉक्टर दीपा क्वेश्चन पूछ रही है। डॉक्टर दीपा प्लीज एक क्वेश्चन मैंने पूछा मैम से। मैम ये क्वेश्चन Yes, पूछूंगी, you are. फास्टिंग जो है ना पूछिए, मैडम, कोई बात नहीं, उसका पूछिए। उन्होंने क्राइटेरिया One by दिया हुआ one है कि पूछिए, अगर one by one 7 मैडम आप समझ डॉक्टर नहीं दीपा को आएगी पूछने जी, दें, मैम। उनका क्वेश्चन कोई भी आंसर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे लोग जो बार बार कर रहे हैं ना, वही बार बार पूछ रहे हैं। आप डॉक्टर दीपा को बोलें कि वो क्वेश्चन पूछ ले अपना। मैं एक क्वेश्चन पहले पूछ लूं मैम से। मैम प्लीज जी, ये जी। बता दें, आप जो तो फास्टिंग बोलती दिया हुआ है रहती उन्होंने 7 से ज्यादा दिया हुआ है गाइडलाइन में, कि आपका अगर फास्टिंग 7 से ज्यादा यानी कि 126 से ऊपर हो जाए तो फिर आपने डायरेक्ट इंसुलिन स्टार्ट करनी है। तो अक्सर जो वो मैटरनल फैक्टर वो है जिसपे आपने इंसुलिन शुरू कर देनी है। जी ये मैम, वो मैटरनल फैक्टर है जो हम बात कर रहे हैं ना, मैटरनल और फीटल फैक्टर की, जिसमें आपने डिसाइड करना होता है। एक मिनट बेटा, मैं जरा जरूरी फोन सुन लूं। जी मैम। हेलो, हाँ नजर, मैं 10 मिनट तक फोन कर लूं अगर अर्जेंसी नहीं है तो। हेलो हेलो जी। तो हाँ जी, जो डॉक्टर दीपा का सवाल था वो ये कि अगर फास्टिंग लेवल उसका 126 है तो उस पर तो कोई एम्बिग्विटी है ही नहीं। उस पर तो हमें पता है कि इंसुलिन को शुरू करना है। और जो हम बार बार एक बात कर रहे हैं ना कि इसमें आपने ओरल शुरू करना है या इंसुलिन शुरू करनी है, वो डिपेंड करता है ऑन सर्टेन मैटरनल एंड फीटल फैक्टर्स। ये मैटरनल फैक्टर में आ जाएगा कि अगर 126 से ऊपर है तो फिर वो आप ओरल से नहीं उसको ट्रीट कर सकते, क्योंकि ओरल से ज्यादातर आप पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स को ट्रीट कर रहे होते हैं और बाकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी ज्यादा बढ़ रही होती है। तो जब फास्टिंग इतना ज्यादा हो जाए तो फिर वो ओरल से कवर नहीं होता, फिर आपने ऐसी ट्रीटमेंट देनी है जिससे फास्टिंग पोस्ट प्रेंडियल दोनों ही कवर हो जाए। तो इसलिए जो है वो डॉक्टर दीपा का ये सवाल का जवाब ये है कि अगर ये फास्टिंग लेवल इतना ज्यादा आ जाएगा तो फिर हमने इंसुलिन ही शुरू करनी है। वो तो बहुत क्लियर कट बात है। नो मैम, मैम ये वाली बात नहीं थी आपने जो बताया। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर फास्टिंग 126 से ज्यादा ओजीटीटी पे डायग्नोज हुआ है तो हम डाइट एक्सरसाइज का इंसुलिन डायरेक्ट शुरू कर दें, लेकिन अगर एक पेशेंट 6-7 लेवल्स पे ऑलरेडी है और उसमें उसका फास्टिंग 126 आ गया है और कोई एक लेवल प्री वाला डिरेंज है, तो हम इसको डाइट एक्सरसाइज को मॉडिफाई करके देख लें या इस पर डायरेक्ट हम इंसुलिन स्टार्ट कर दें? नहीं, आपने फास्टिंग लेवल 126 बताया इसने अपने दूसरे सिनेरियो में। जी मैम, 126 से ऊपर है, 130 हो गया, 128 अगर हो तो गया। फास्टिंग लेवल 1 भी आ गया है 126 पे तो स्टार्ट करो इसको हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट डाइट और एक्सरसाइज के साथ। डाइट एक्सरसाइज ने तो हर हाल में साथ के साथ चलना ही है, इधर आइसोलेटेड अगर बॉर्डर लाइन लेवल्स हों एंड सी द इफेक्ट इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन। ये है इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो फिर तो आपने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक डाइट एक्सरसाइज के साथ साथ शुरू कर देने हैं। फिर रह जाता है डिसीजन बिटवीन ओरल एंड इंसुलिन, दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स एब्सोल्यूट ब्लड शुगर लेवल एंड ऑन द
एडिशनल फीटल कॉम्प्लिकेशन जो हम बात कर चुके हुए हैं, मैक्रोसोमिया हो गया या पॉलीहाइड्रामियोस हो गया या फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 126, इन चीजों पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, इसमें ये बहुत क्लियर कट चीजें हैं। अब कंफ्यूजन हमें सिर्फ इसमें हो रही थी कि प्रॉम का केस है जो प्रीडिस्पोज करेगा टू एग्रीवेशन ऑफ इन्फेक्शन, कोरियोनिटिस जल्दी डेवलप इसमें हो सकता है। सो इस सूरत में भी हमने डाइट एक्सरसाइज विल गो साइड बाय साइड अलोंग विद द हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें आप बता सकते हो, यू कैन जस्टिफाई इट ऑन सर्टेन फैक्टर्स। इंसुलिन बताने वाले भी उसमें ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट जो है वो चीज है ही इसमें ये कि आपने उसको कंट्रोल करना है इफेक्टिवली, जो डेफिनेटली ओरल से भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके फास्टिंग लेवल 105 है। ये ऐसा लेवल नहीं है कि जिसपे हम कहें कि इंसुलिन के अलावा और कोई थेरेपी इसमें काम नहीं कर सकती, कर सकती है, ओरल भी कर सकती है, इंजेक्टिव इंसुलिन भी कर सकती है, और पोस्ट प्रेंडियल है वो डाइट और इंसुलिन उसके साथ ग्लूकोफेज के साथ बिल्कुल कंट्रोल हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन और ले लें। मैडम मेरा क्वेश्चन है प्लीज। जी बताइए। मैडम ये क्वेश्चन है मेरा कि ये जैसे पेशेंट है 31 वीक पे प्रीवियस 1 है, और मैडम ये प्रोम के साथ है, ये 2 वीक के बाद ये कोरियोनिटिस डेवलप कर देती है, तो मैडम मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा? अगर ये एसवीडी होती तो फिर मैडम इसका मोड ऑफ डिलीवरी क्या होता? देखो एसवीडी अगर प्रीवियस इसकी होती तो हम एसवीडी ही करते, इसमें तो कोई वो मसला नहीं है। सिर्फ मसला उसमें होता है जब प्रीवियस इसका सेक्शन है और हमने उसमें सोचना है कि अब हम इसको नॉर्मल डिलीवर करें, या अब जहाँ पे बहुत वेरी प्री टर्म वाली कैटेगरी में आ जाते हैं जहाँ पे फीटल सर्वाइवल नहीं है, वहां तो हम ट्रायल देते भी हैं, तो उसमें वो डिलीवरी का हम सोचते हैं। लेकिन ये जो बॉर्डर लाइन वाला एरिया जेस्टेशनल टाइम पीरियड आ जाता है 31 वीक्स का है, और इसके साथ एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी तकरीबन अगर 2 हफ्ते फर्ज किए इसके ठीक भी चल जाते हैं आगे, तो 33 वीक्स की हो जाएगी। अब ये प्रेगनेंसी जेस्टेशनल टाइम पीरियड जो है, अब 33 वीक्स पे हमने इसको नॉर्मल डिलीवर करना है या सेक्शन करना है, विल डिपेंड अपॉन द मैटरनल एंड फीटल स्टेटस एट दैट टाइम, क्योंकि डेवलप हो गया है। अगर देखो जो जब हम ट्रायल ऑफ लेबर की बात करते हैं तो आप फीटस को डबल रिस्क पे डाल देते हैं, यानी प्रीवियस सेक्शन के साथ। यही वजह है कि प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन कंबाइंड विद एनी कोमॉर्बिडिटी जैसे हाइपरटेंशन या डायबिटीज, तो उसमें फीटल रिस्क बढ़ जाते हैं, 2 फोल्ड हो जाते हैं। एक तो ट्रायल ऑफ लेबर की, इसमें पहले सेक्शन के आपको पूरी वेयर अबाउट्स पता होने चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हुई या ना हुई, और अभी प्रेजेंट जो है वो सारा आपने अल्ट्रासाउंड पे भी देखना है, सारा प्लेसेंटल लोकेशन तो इन्होंने बता दिया था, ठीक है, और बाकी आपने फीटल स्टेटस को भी उस वक्त देखना है। अगर तो ये हमने डिटेल में वैसे अभी इसी सेशन में हमने ये डिस्कस किया कि अगर तो फर्ज किया ये फ्रैंक कोरियोनिटिस अनलकीली डेवलप हो जाता है, तो फिर उसमें वेजाइनल डिलीवरी ज्यादा सेफ है अगर ये लेबर में चली जाती है तो, क्योंकि ये भी तो डिपेंड करता है कि हमें इसमें कोई इंडक्शन एजेंट देने पड़ते हैं या नहीं देने पड़ते। इंडक्शन एजेंट का देना जो स्कार डिहिसेंस है या स्कार रप्चर है उसके रिस्क को बढ़ा देता है, यानी अगर ये लोअर सेगमेंट स्कार है तो ये 0.7 वर्सेस 2.5 तक हो जाता है, तो स्कार रप्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं विद द इंडक्शन ऑफ लेबर, क्योंकि 33 वीक्स पे तो लोअर सेगमेंट बन चुका होता है। तो अब इसमें उस वक्त के फीटल मैटरनल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब 33 वीक्स का बच्चा इज इन सर्वाइवेबल एज, तो उसमें बेहतर होता है कि ये अगर इसका सारा ये सिनेरियो चल रहा है और कोई फ्रैंक इन्फेक्शन वाली चीज नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कोरियोनिटिस डेवलप नहीं हुआ, लेकिन कोई सब क्लिनिकल इन्फेक्शन वाली बात है, तो उसमें आप सेक्शन की तरफ जा सकते हो। विद द फ्रैंक कोरियोनिटिस इट इज बेटर टू गो फॉर वेजाइनल डिलीवरी इफ शी गोज इनटू लेबर, क्योंकि इसमें अब रप्चर्ड मेम्ब्रेन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डायबिटिक प्रेगनेंसी आप उसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडक्शन का इस्तेमाल फिर रिस्की हो जाता है। मैडम अगर किसी को कोरियोनिटिस डेवलप हो जाता है तो कितने आवर्स में हमें डिलीवरी करवा देनी चाहिए उसकी? अब 2 हफ्ते से तो हम इसको लटका रहे हैं, सपोज ये 2 हफ्ते के बाद नहीं मैडम अब हुआ है डेवलप कोरियोनिटिस, यानी राइट नाउ आफ्टर द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी फॉरन ही हो गया, तो फिर अब नहीं मैडम जैसे 12 आवर्स इसको डिलीवर कर लें। देखो कोरियोनिटिस अगर फुल ब्लोन हो गया क्लिनिकल एज वेल एज बायोकेमिकल सारी चीजें इंडिकेटिव है
कोरियम नेनाटस की, तो देन यू आर इंक्रीजिंग द फीटल मॉर्बिडिटी एंड द मैटरनल मॉर्बिडिटी बाय प्रोलॉन्गिंग द प्रेगनेंसी। आप दोनों की मॉर्बिडिटी को बढ़ा रहे हो, इसलिए इसमें लटकाने वाला कंसेप्ट फिर नहीं होता वंस द कोरियम नेनाटस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो इसलिए एक दफा अगर हो गया तो यू हैव टू बी क्विक टू डिलीवर द बेबी। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैडम, Thank you, काफी madam. क्लियर हो Thank you गया। so मैडम कोरियम नेनाटस के अगर कितने एक पेशेंट कोरियम नेनाटस का मैडम कितने साइन सिम्टम्स हो तो हम इसको इंड्यूस करना शुरू कर दें या डिलीवर कराने का सोचे? क्या सिम्टम सिर्फ एक ही हो तो भी हम इसको डिलीवर कराना का सोचे या उसके लिए साइन भी जरूरी है? देखो इसमें सिम्टम्स कोई एक भी हो तो वो सिग्निफिकेंट है। सारी पूरी जो एक कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स है या कोई पूरा सिंड्रोम जरूरी नहीं होता कि डेवलप हो। बार दफा सिर्फ एक ही सिम्टम होता है। जैसे अगर उसका कोई पसी डिस्चार्ज आना शुरू हो गया या उसमें फीवर उसको होना शुरू हो गया एंड देयर इज नो अदर रीजन फॉर दैट, या उसकी वो खुद से लेबर में जाती है या यूट्राइन टेंडरनेस बहुत होना शुरू होगी, दैट अगेन इज एन इम्पोर्टेंट सिम्टम ऑफ द कोरियम नेनाटस। तो वो कोई एक भी सिम्टम होगा तो यू विल कंसीडर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मैम ये पेन जो होगा इसका टेक्सचर कैसा होगा? मतलब ये पूरा होल एब्डोमेन में होगा या सिर्फ यूट्राइन लाइनिंग में होगा? मतलब कि लोअर सेगमेंट में होगा? ये कोई एक लोकलाइज जगह पे तो नहीं होती है, तो इसलिए जो है ये जनरली जो है एब्डोमेन यूट्राइन टेंडरनेस होती है। मैडम देखें, एक चीज लास्ट क्वेश्चन था, वैसे थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा आपका लेक्चर था, बहुत सीखा। मैडम देखिए, अगर समझिए कि एक पेशेंट है कि ये पेशेंट नहीं है कि अभी 105 पे आई है, ये लीकिंग वाली पेशेंट नहीं है, अब मैंने इसको शुगर मॉनिटर किया तो अब इसकी आगे जो है नेक्स्ट डे नॉर्मल लिमिट्स में आ रही है, फिर तो मैं इसी पे ओजीडीटी करवाऊंगी ना कंफर्म करने के लिए? नहीं, लेकिन देखो इसमें मतलब ये कि सिर्फ इसमें सिनेरियो डायबिटिक का है और आप ये कह रहे हो कि ये फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल इतने आगे, लेकिन बाकी जो हमने 6 लेवल्स करवाए वो ठीक आए हैं। आप और यही नेक्स्ट डे कह रहे हो फास्टिंग सही आ रही है? जी जी। फिर तो आप ओजीटीटी करवाओगे, क्योंकि अप टिल 34 वीक्स यू कैन डू ओजीटीटी। ठीक है, उन पेशेंट्स में जिनमें डायग्नोसिस इज डाउटफुल, इसमें एक रीडिंग 200 की आ गई और एक रीडिंग फास्टिंग 105 की आई, और अब आपने जब मॉनिटर किया इसको 6 लेवल्स ब्लड के, वो सारे ब्लड शुगर लेवल्स के करवाए और आगे भी जब करवाए तो वो सारे ठीक हैं, हैव एन ओजीटीटी। मतलब ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ही मतलब वो थी, अभी मैंने से कोई वो हाइपोग्लाइसेमिक तो एजेंट्स आपने नहीं बताना है क्योंकि इसका मतलब है एक लेवल जिसके आए हैं, चाहे हो सकता है वो लैब रिपोर्ट का एरर हो सकता है उसने कोई टाइप ऑफ फूड ऐसा लिया हो, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विल गो साइड बाय साइड। वो तो आपने उसको एडवाइस राइट फ्रॉम द बिगनिंग कर देनी है, लेकिन आपने ये भी देखना है कि ओजीटीटी के बाद ये क्लियरली डायबिटिक डिक्लेयर होती है या नहीं होती। ओके ओजीटीटी आप करवाओगे टिल 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी व्हेनेवर इन डाउट। ओके मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ओजीटीटी हम किस जेस्टेशनल एज पाएंगे? जी ओजीटीटी जेस्टेशनल एज तक करवाएंगे? मैंने बताया ना 34 वीक्स। मैं सुना तो करें मैडम की बात। चलो जी मैडम, थैंक्स अ लॉट, बहुत टाइम लिया आपका, बट ओके वेरी नाइस। थैंक यू मैम, वी लव यू मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाजिया।